Astin Nagar, Patna, and he has been associated with the Special Olympics last 26 years. So we welcome Dr. Subhash Chandra. Have you joined, sir? Dr. Subhash Chandra. Okay, he will, Dr. Subhash Chandra, he will be joining from Hyderabad. At present, he is working at Hyderabad. And he is settled also. Dr. Subhash Chandra, sir, have you joined? He is joining. Just उनसे बात हुई है. He will be joining soon. Please mute yourself. So many person there. The mic has been open. Please mute yourself. Please mute yourself. Those mics are open. Please mute yourself. So you, Dr. Subhash Chandra. I have joined. Yeah. Welcome, sir. Are So, you able to see me? 1 minute. Yeah, but please open your video. Video, okay. Okay. Yes. Yes. And light is coming from background. If you can. Okay. Just a minute. Is it okay now? Yes, sir. Welcome. So, just I'm briefing, sir. The trainer program has started on 15th of July. It will continue 13th of August, 1 month training program, and we will be giving the community level certificate course. So all types of disability like Paralympic, Deaf Olympic, Blind Sports, AV Olympic, whatever the sports are going for autism and cerebral palsy. Every day our resource person, someone coming and giving training. And we know that the healthy athlete program is very important and very essential. You have the long experience regarding healthy programs. So please, almost 162 trainer around 23 states they have joined. Sir. Welcome you, sir. राहुल जी थोड़ा इसको लाइव कर दीजिएगा. राहुल जी फेसबुक यूट्यूब लाइव कर दीजिएगा. सो वी कैन शेयर द लिंक आल्सो. ओके सर. Good evening, everyone. I am Dr. Subhash Chandra. I am an orthopedic surgeon. I've just retired from Director Loknayak Jayaprakash Nayan Hospital recently. And I am also
attached to Special Olympics since 2002, when Shivaji introduced me. There was a pilot project of MedFest to be carried over in Patna, and then I got the opportunity to get attached, and later on, adding to the Special Olympics, I became a clinical director. Then the need came for making a regional clinical advisor because it became very expensive for people to come from US to different part of Asia Pacific countries. So as per the regions are concerned, the Asia Pacific, uh, rigorous interview was made with Patrick Noonan, the global advisor of FitFit, and he made me the regional clinical advisor of Special Olympics. Special Olympics, as you all know, uh, if some people must be new, a very brief introduction about Special Olympics and healthy athlete is that it started in 1968 when John F. Kennedy's sister, Eunice Shriver Kennedy, thought of making an organization which will look after these healthy, intellectual, challenged persons. And one of his own sister was intellectually challenged, and hence she thought of how to utilize or spend their times, because the plight of these children only the parents can understand, know, or the person who is closely attached to them. Once you get attached to these people, these children or person, you will continuously be attached to him. You cannot leave them because it's just like a mission. Please share the PPT, Rahul ji. Yeah. So, uh, and I got the opportunity to visit so many countries, Asia Pacific countries, and different part of the country, our own country itself, to propagate FitFit. There are different branches of Special Olympic healthy athlete. Like what is healthy athlete? You must be listening. Ki healthy athlete, healthy athlete. It is the health part of the uh, sports person who are special intellectual challenged persons. The health part. So as per the discipline like orthopedics, pediatrician, physiotherapist, ENT, eyes, different branches has been renamed, and you must be knowing like Olympics name cannot be given to any organization unless until there is some fixed. It has a fixed principle and rules. The principle of Olympics is followed in Special Olympics also. And people, the same thing happens every 4 years. There is an international event, and round the year there is event in the country, in the district, everywhere, and from there they go to the international event. So today's talk is regarding the healthy athlete. So a PPT is also made regarding this, which will make you understand about healthy athlete. So We let are me first. sharing the PPT, sir. Okay. It will uh, appear on the screen. Okay. Okay. So let me first welcome you all to this program, Healthy Athlete Program, which is the 23rd day of this program. And the sports person, the healthy doctors, the coaches, they all are attending. The parents must be attending. So very good evening to all of us. And yeah, so very good evening to all of us.
And now I shall be talking about healthy athlete and what is about today's session. In today's session, my focus will be on healthy athletes program. जैसे आज का जो विषय होगा हेल्दी एथलीट्स कार्यक्रम का, उसमें हम लोग हेल्दी स्क्रीनिंग, कैसे हेल्थ स्क्रीनिंग करते हैं, हेल्दी लाइफस्टाइल कैसे करते हैं, बेटर स्पोर्ट्स परफॉर्मेंस कैसे होगा। तो आप सोच भी नहीं सकते हैं कि बिना स्वस्थ, बेहतर स्वास्थ्य के कोई हेल्थ अच्छा स्पोर्ट्स मैन बन सकता है। तो अच्छे स्पोर्ट्समैन बनने के लिए बढ़िया स्वास्थ्य की बहुत आवश्यकता है, जिस पर हम लोग फोकस करते हैं। और यही रीजन है कि हेल्दी एथलीट प्रोग्राम का समावेश इस कार्यक्रम में किया गया, स्पेशल ओलंपिक्स में किया गया। नेक्स्ट स्लाइड। हम लोग समझेंगे कि स्क्रीनिंग, हेल्थ स्क्रीनिंग क्या है। तो हेल्थ स्क्रीनिंग हम लोग कैसे करते हैं, तो इसमें कोच का रोल होता है। कोच जो है वो भी रहते हैं, जो स्पोर्ट्स कराते रहते हैं। और हेल्दी हैबिट्स के बारे में हम बताएंगे। स्वास्थ्य परीक्षण क्यों होना चाहिए। कोच की भूमिका है कि वो बच्चे से बहुत ही जुड़े रहते हैं, डे टू डे उनका संबंध रहता है ऐसे बच्चों के साथ, तो उनका बात वो अच्छे से मानते हैं। दे आर जस्ट लाइक द फर्स्ट गार्जियन ऑफ दीज चिल्ड्रन। नेक्स्ट स्लाइड। उसके अच्छे अच्छे आदतों के बारे में भी बताया जाता है कि किस तरह से हम लोग को हर एक विषय पर इन लोगों को क्या बताना है। तो एक चीज तो जान लीजिए कि जो स्क्रीनिंग होता है, ये फ्री हेल्थ स्क्रीनिंग होता है, इसमें कोई पैसा नहीं लगता है किसी को। और ये स्क्रीनिंग में जो भी डाटा होते हैं, जितने लोग हैं, उस सब का एक डाटा बेस तैयार होता है, जो हेल्दी एथलीट स्क्रीनिंग फॉर्म की तरह के रूप में उसको हम लोग एंट्री करते हैं। और वो फॉर्म जैसे किसी सेंटर पे हो रहा है, किसी स्टेडियम में हो रहा है, वहां से वो अपने स्टेट के हेडक्वार्टर में जाता है, और फिर वो रिकॉर्ड पूरे विश्व के इंटरनेशनल लेवल पर भी जाता है, और इस पूरे का एक डाटाबेस तैयार होता है। अब रह गई बातें कि मेडिकल रेफरल के बारे में हम क्या बताएंगे। हेल्थ एजुकेशन तो एक एक करके जब एक एक डिसिप्लिन हम लोग डिस्कस करेंगे तो उसमें बताएंगे। लेकिन रेफरल की के संबंध में ये बताना चाहते हैं कि हर एक सेंटर पे पहले से हम लोग प्रीफिक्स कर लेते हैं कि अगर मान लीजिए ऐसे एथलीट को किसी चीज की कमी हम लोग पाते हैं, तो उनको बेहतर से बेहतर जगह स्थान पर रेफर किया जाए। और उस जगह पे हमारे क्लिनिकल डायरेक्टर, हमारे विशेषज्ञ लोग रहते हैं, जो इसको भली भांति उनके बातों को सुनते हैं, उनके बातें का इलाज करते हैं। क्योंकि आपको मैं बता दूं कि ऐसे बच्चों को जांच कर लेना, स्क्रीन कर लेना कोई बहुत ही आसान चीज नहीं है। इनके मूड पे डिपेंड करता है। तो हमको अपना मूड उनके मूड के हिसाब से बनाना पड़ता है। वो किसी भी क्षण अगर उनके मन का चीज नहीं हो रहा है, तो वो नाराज हो जाएंगे, आपको कुछ बोल देंगे, आपको थप्पड़ भी लगा देंगे। तो ऐसी स्थिति में आपको अपना पेशेंस नहीं खोना है। ज्यादातर देखा जाता है नॉर्मल प्रैक्टिस, डॉक्टर जो प्रैक्टिस करते हैं, वो बहुत सा ज्यादा आइडेंटिफाई नहीं करते हैं मरीजों से, जिससे कि, और थोड़े सी बात पर अगर गुस्सा कर लिए तो इसमें वैसा नहीं चलता। इसमें आप बच्चे के नेचर के हिसाब से आपको अपने को ढालना पड़ेगा। यू हैव टू मेंड योर सेल्फ विद द नेचर ऑफ द चिल्ड्रन। उनके जैसे व्हाट दे डिमांड, यू हैव टू फुलफिल देयर डिमांड्स।
So next slide. हाँ राहुल जी, नेक्स्ट स्लाइड. अच्छा, तो फिर व्हाई इट इज इम्पोर्टेंट, आखिर ये हेल्दी एथलीट प्रोग्राम इंपॉर्टेंट क्यों है? भाई इंपॉर्टेंट इसलिए है कि इट टीचेस अस हाउ टू स्टे हेल्दी, इट डिटेक्ट्स प्रॉब्लम्स अर्ली, बेटर स्पोर्ट्स परफॉर्मेंस, एंड देन दे कैन डू बेटर स्पोर्ट्स परफॉर्मेंस. समझ लीजिए कि अगर एक बच्चा था जो हमेशा सेकंड करता था 100 मीटर रेस में, जबकि उसका इंडिविजुअल परफॉर्मेंस देखा गया तो फर्स्ट जो करता था उससे काफी तेज था और ज्यादा तेज से दौड़ सकता था, लेकिन जब कंपटीशन होता था, रेस होता था, तो सेकंड करता था. अब ये बात जब उसकी जांच की गई, उसके आंखों की जांच की गई, उसकी दृष्टि की जांच की गई. पीपल आर कंफर्टेबल इन इंग्लिश हिंदी मिक्स और ओनली इंग्लिश और ओनली इन हिंदी? Mix, sir. मिक्स, Both. ओके. मिक्स. तो ओके ओके, गुड. मिक्स, ओके. सो व्हेन तो the क्लास खत्म किया दूसरे individual ज्वाइन किए. हाँ, eye इधर इधर ध्यान देते हैं, examination उधर was इधर उधर done, ध्यान देते हैं, समझ में we नहीं could आते. find that the children had मेरा बोला है defective vision. कितने ये थे What हम पता है. he तैयारी used कभी नहीं to किया, मैंने नहीं let किया the कभी. हाँ, other boy go तैयारी ahead, करो. and he used to follow him, just like other. So his real performance was not there. So he was not able to give the better sports performance. But when his problems were detected, treated, glasses were given, he became first, and then he could have bring lots of medal to the district, to the state, to the country. So now you can understand what is and why it is important. Suppose there is a callus or there is a corn in the feet. These children will not tell you, yeah, I have some problem, but they will just carry on. But if they are screened, they are the problems are detected, we can make them, enable them to make better sports performance. Next slide. Now, fun fitness is one of the discipline. जैसे हमने बताया था कि हर एक का एक एक अलग अलग डिसिप्लिन है. जैसे फिजियोथेरेपिस्ट लोग हैं तो उनके लिए जो ग्रुप जो जांच हम लोग करते हैं वो फन फिटनेस, मतलब फिटनेस कैसे हो तो वो एक फन के तरह हो, मतलब उससे उनको मजा आए और उनका फिटनेस का चेक हो और उनको फिट बनाया जाए. तो उनके स्ट्रेंथ को डेवलप करना है, उनके बैलेंस को डेवलप करना है, उनके फ्लेक्सिबिलिटी को डेवलप करना है, और इन सब चीज को डेवलप करने से उनको फिटनेस हम लोग दे सकते हैं और एक फन के तरह फिटनेस दे सकते हैं. तो फिजियोथेरेपिस्ट लोग का रोल है, वो डिफरेंट तरीके से मसल स्ट्रेंथनिंग कराते हैं, बैलेंसिंग कराते हैं, मूवमेंट्स कराते हैं जिससे फ्लेक्सिबिलिटी आता है और तब वो फिट होते हैं स्पोर्ट्स एक ग्राउंड में उतरने के लिए. एक पैर पर खड़े होने का आदत दिया जाता है. सब लोग नहीं खड़े हो सकते हैं, एल्डरली लोग नहीं खड़े हो सकते, यंग लोग उसको प्रैक्टिस करा करके उनको कराया जाएगा. चलिए नेक्स्ट स्लाइड. सेकेंड डिसिप्लिन आता है फिट फीट. इस फिट फीट में क्या लिखते हैं हम लोग? फिट, FIT फिट, मतलब ये हमारा पैर जो है फिट है, और फीट पैर के बारे में. तो यहाँ पर इसी के हम इसी डिसिप्लिन के हम एशिया पैसिफिक के इंचार्ज हैं और इसका अलग कार्यक्रम होता है. हाल में अभी कैलकाटा में हुआ था जिसमें हमारे नेशनल चेयरमैन नड्डा जी, मिसेस नड्डा आई थी
और इसमें हम लोग पैरों की जांच करते हैं। पैरों की जांच में हम लोग हर एक चीज देखते हैं, नेल्स कैसे हैं, स्किन कैसा है, उसके बाद उसके मूवमेंट्स कैसे हैं, उसके उसके गेट कैसे हैं। जैसे वो पूरे फॉर्म में डिस्क्राइब किया हुआ है कि किस किस तरह के विकृति, डिफेक्ट्स हमको फुट फिट बनाने के लिए फीट में खोजना है। उसके अनुसार हम लोग उन बच्चों को परीक्षण करते हैं, मतलब उनको जांचते हैं। और उसके बाद उनके जूते को भी हम लोग जांचते हैं। तो पैर के जूते के साइज पर भी बहुत कुछ डिपेंड करता है। आपका 8 नंबर का जूता है, आपको 10 नंबर दे दीजिएगा तो आप कैसे चलेगा। तो प्रॉपर शू का मेजरमेंट के लिए एक डिवाइस आता है, ब्रैनॉक डिवाइस। तो ये ब्रैनॉक डिवाइस उसमें हम लोग को उपलब्ध होता है, सेंट्रल टीम ले भेजती है। ब्रैनॉक डिवाइस से हम लोग शू भी मेजर करते हैं, फुट भी मेजर करते हैं, और प्रॉपर शूज के लिए रिकमेंड करते हैं, जिसमें पैर के विड्थ भी नापा जाता है। आप अच्छे कंपनी के जूते को देखेंगे तो उसमें देखिएगा, उसमें लिखा रहेगा 42 चाहे 8 ABC। ये ABC क्या है? ABC इसका विड्थ है, चाहे उंगलियों का लेंथ है। तो कई माप किया जाता है प्रॉपर शू देने के लिए। तो इन सब के साथ हम यही बताना चाहेंगे कि करेक्ट शू साइज बच्चों को मिलेगा। कॉर्न है तो उसका इलाज होगा, डिफॉर्मिटी है तो उसका इलाज होगा। उसके गेट को हम लोग एनालाइज करते हैं, गेट एनालिसिस करते हैं कि उसके पैर में अगर विकृति है तो उसको प्रॉपर वे में उसको शूज मिलेगा तो उसका करेक्शन हो जाएगा, तो वो अच्छे से चल सकेगा। तो ये हम लोग का ये दूसरा डिसिप्लिन हो गया, फन फिटनेस एंड फिट फीट। चलिए नेक्स्ट स्लाइड। स्पेशल स्माइल्स। स्पेशल स्माइल्स से आपको अंदाजा लग गया होगा कि हंसी, स्माइल्स का तो टीथ, दांत का इसमें केयर देखा जाता है। और स्पेशल, चूंकि वी आर डीलिंग विद द स्पेशल चाइल्ड, सो इट इज स्पेशल स्माइल्स। उनके चेहरे पर खुशी कैसे लाया जाए। अब किसी का दांत ही खराब है और वो पेन हो, तो तो ये मुझे डेंटल, मारो कि दिमाग कल कब चल रहा है, 12 बजे आया, 12:30 बजे आया था, पता तो नहीं लग उसका रहा जो, था। चलो 5 बजे उठ गया था। तो उसके दांत के अगर कोई प्रॉब्लम है तो उसका इतना रेफर्ड पेन जैसे होता है। रात में जाएगा कहीं दूर तो कुछ हाँ, कोई लोग का माइक है, म्यूट कर लीजिए और सुनते रहिए। हाँ, तो हम लोग डेंटल केयर करते हैं, इसमें टीथ चेक करते हैं, गम चेक करते हैं, ब्रशिंग का हैबिट बताते हैं, उसके मॉडल्स वहां रहते हैं, और कितनी बार ब्रश करना है इसके बारे में हम लोग बताते हैं, कम से कम 2 बार करें। और ये भी बताते हैं कि नहीं करने से उसमें केरीज हो जाएगा और फिर वो पेनफुल हो जाएगा अगर उसके नर्व को इन्वॉल्वमेंट हो गया। तो इसलिए स्माइल्स, और अगर कुछ इन्फेक्शन है गम्स में तो आपका पूरा स्वास्थ्य गड़बड़ होगा, क्योंकि माउथ से ही सारा खाना जाता है। तो इसलिए ये थर्ड स्पेशल उसका डिसिप्लिन है, स्पेशल स्माइल्स। अब हम लोग नेक्स्ट स्लाइड देखेंगे। ओपनिंग आईज। ओपनिंग आईज, आईज का जांच करना, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ओपनिंग आईज को लायंस क्लब ने अडॉप्ट किया था। हर जगह इसके कार्यक्रम में वो सहयोग देते हैं। तो उसमें हम लोग विजन केयर करते हैं, मतलब आई का स्क्रीनिंग करते हैं। पावर का क्या, अभी हमने एग्जाम्पल बताया था आपको कि एक बच्चे को कैसे आई स्क्रीनिंग करके उसको हम लोग मेन स्ट्रीम में लाए, फर्स्ट किया। उसमें विजन टेस्ट करते हैं, ग्लासेस जरूरत है तो ग्लास देते हैं, उसमें हम लोग बच्चे को वहीं पर ग्लास भी दिया जाता है, और उनको लेटर्स पढ़वाते हैं चार्ट के थ्रू,
स्नेल्स चार्ट बोलते हैं, उसके थ्रू लेटर्स पढ़वाते हैं, तो पता चल जाता है कि उनके आंख में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। और फिर उसके काउंसलिंग करते हैं कि विटामिन ए वगैरह देना है जिससे कि आईज का इश्यूज नहीं आए। तो ओपनिंग आईज भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो फन फिटनेस हो गया, फिट फिट हो गया, ओपनिंग आईज हो गया, और इसके जस्ट पहले जो था चलिए नेक्स्ट स्लाइड। आईज के बाद हम लोग आते हैं स्ट्रॉन्ग माइंड, मेंटल वेलनेस। ये तो सबसे बड़ा चीज है। मान लीजिए कि हम लोग पॉजिटिव थिंकिंग अगर करेंगे तो कोई भी बीमारी से हम लोग लड़ सकते हैं। मैं तो बताता हूं कि स्वस्थ शरीर के लिए, जैसे एक कार, चाहे वो कितना भी एक्सपेंसिव हो, अगर उसके 4 चक्का में एक चक्का भी पंक्चर है तो वो बेकार है, वो कोई काम का नहीं है। उसी तरह हेल्दी लाइफ के लिए, स्वस्थ जीवन के लिए 4 चीज की आवश्यकता बहुत ही जरूरी है। पहला क्या है, तो एक्सरसाइज करना चाहिए आदमी, जो हम लोग फन फिटनेस में बताते हैं। दूसरा क्या है, हम लोग बताते हैं एक्सरसाइज आप करते हैं तो थोड़ा रेस्ट भी होना चाहिए। मान लीजिए कि आप रेस्ट करें नहीं तो आप कितना देर काम कर सकते हैं। आप गाड़ी भी चलाइएगा तो गाड़ी को एक रेस्ट चाहिए, मशीन है। तो एक्सरसाइज, रेस्ट, और थर्ड है पॉजिटिव थिंकिंग। ये पॉजिटिव थिंकिंग जो है आपके कंट्रोल में है। तो जितना जरूरी एक्सरसाइज है, रेस्ट है, उतना ही जरूरी पॉजिटिव थिंकिंग। जैसे अगर आप सोच लिए कि हम बीमार हैं, हम मैलेज फीलिंग है, तो आपको बहुत सारा ऐसा हार्मोन सिक्रीट होने लगेगा जो आपके शरीर को हेल्दी नहीं रहने देगा। तो इसलिए पॉजिटिव थिंकिंग का रोल है। और चौथा जो हम बताते हैं हेल्दी लाइफ के लिए, दैट इज बैलेंस डाइट। तो पहला 3 तो आपके कंट्रोल में है। यू कैन हैव योर गुड पॉजिटिव थिंकिंग, यू कैन डू एक्सरसाइज, यू कैन टेक रेस्ट, बट बैलेंस डाइट तो आपको जो बाजार में मिलता है वही खाएंगे। जो सब्जी है, हार्मोन डाला हुआ मिल्क है, पनीर है, वो तो आप मैन्युफैक्चर नहीं कर पाएंगे। तो इसीलिए ये 3 चीज हमारे अंडर में है, लेकिन ये चारों चीज इंपॉर्टेंट है। अब बैलेंस डाइट में आप देख सकते हैं कि ट्रेस एलिमेंट्स का भी बहुत बड़ा रोल है। अब आप सोच लीजिए कि घर में आपके सब कुछ है और लाइटर नहीं है तो आपका खाना ही नहीं बन सकता है। तो ये लाइटर जो है ना, एलिमेंट्स का काम है। तो हर शरीर के लिए हर चीज की आवश्यकता है एक समुचित मात्रा में। तो उसके बाद हम बताते हैं कि मेंटल वेलनेस के लिए पॉजिटिव थिंकिंग बहुत जरूरी है। कॉन्फिडेंस होना बहुत जरूरी है कि आदमी कॉन्फिडेंस हो तो पहाड़ पे चढ़ जाए, माउंट एवरेस्ट पर चढ़ जाए। जिसको कॉन्फिडेंस नहीं है वो सोचते ही सोचते बीच में रुक जाएगा। और हर एक आदमी को लाइफ में स्ट्रेस तो होना ही है। उसको हम मैनेज कैसे करेंगे? तो स्ट्रेस मैनेज करने के लिए आपको पॉजिटिव थिंकिंग करना होगा, कॉन्फिडेंस चाहिए। आप डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइज करिएगा तो आप स्ट्रेस को मैनेज कर सकते हैं। अपना लाइफस्टाइल बदल दीजिए। तो डीप ब्रीदिंग अगर आप करते हैं तो वो भी आपको हेल्दी लाइफ के लिए, मेंटल वेलनेस के लिए एक काफी सहयोगी सिद्ध होता है। डीप ब्रीदिंग मतलब गहरी सांस लेना। स्ट्रेस मैनेजमेंट, तनाव को नियंत्रित रखना। कॉन्फिडेंस, आत्मविश्वास और सकारात्मक सोच, ये मेंटल वेलनेस का रीजन सब है। तो अब नेक्स्ट स्लाइड पर हम लोग जाते हैं। हेल्थ प्रमोशन। हेल्थ प्रमोशन में मोस्टली पीडियाट्रिशियन लोग रहते हैं। इसमें
आपको हमने बताया था कि फोर्थ पार्ट जो है वो बैलेंस डाइट का है, जिसमें हेल्दी फूड होना बहुत जरूरी है। केवल जंक फूड खाएंगे तो आपका हेल्थ ठीक नहीं रहेगा। हेल्दी लाइफस्टाइल होना चाहिए, मतलब आपके हर एक चीज का एक टाइम होना चाहिए कि लाइफस्टाइल मतलब सब चीज नियमित रूप से आपका चलना चाहिए। कोई अगर डिसिप्लिन नहीं है, कहीं किसी समय में खा रहे हैं, कभी सो रहे हैं, कभी नहीं सो रहे हैं, तो ये हेल्दी लाइफस्टाइल नहीं है। हेल्दी लाइफस्टाइल एक हेल्थ प्रमोशन के बारे में इंगित करता है। हेल्दी फूड, आप लोग जानते हैं, पौष्टिक भोजन बहुत जरूरी है शरीर के लिए। क्लीन वाटर मतलब स्वच्छ पानी, उसी से बहुत सारा आपको बीमारी होता है, वाटर बोर्न डिजीज। पर्सनल हाइजीन, एवरी डे वी मस्ट टेक bath, clean yourself, then you will feel fresh also. तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, स्वच्छ रहना। व्यक्तिगत स्वच्छता मतलब अपना पर्सनल हाइजीन के बारे में, जैसे आप अपने हाथ को कैसे वॉश करते हैं जिससे कि कोई भी कीटाणु जर्म्स आपके हाथ में नहीं हो। स्पेशली खाने के पहले लोग बैठ जाते हैं, कुछ कुछ चीज खाने का उठा करके उंगलते हैं, में कितने जर्म्स है हम नहीं देख सकते, लेकिन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से पता चलेगा। तो इस तरह से हाथ धोना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये आपके हेल्थ को काफी अच्छे से सुनियोजित ढंग से सज्जित करके रख सकता है। नेक्स्ट स्लाइड। हेलो। नेक्स्ट आफ्टर हेल्थ प्रमोशन, यस, कोच का रोल क्या है? कोच तो हम बता दिए, ही इज द फर्स्ट गार्जियन ऑफ द चिल्ड्रन। ये कम्युनिटी कोच, इनकी इनकी भूमिका क्या होगी? तो ऑब्जर्व एथलीट्स, अपने एथलीट को ऑब्जर्व करते हैं, वो उनको इनकरेज करेंगे स्क्रीनिंग के लिए, चलो तुम लोग का स्क्रीनिंग कराएंगे। और फैमिलीज सपोर्ट करते हैं फैमिलीज को, मतलब उनको कभी कभी फैमिली भी डिप्रेस हो जाते हैं, तो कोच का काम है कि उनको इनकरेज करना, उनको सपोर्ट करना और उनके तनाव को खत्म करना। तो परिवार का सहयोग करते हैं हम लोग, जांच के लिए प्रेरित करते हैं और खिलाड़ियों पर ध्यान देते हैं। तो कोच का रोल बहुत इंपॉर्टेंट है। कोच का बात सब लोग मानता है, क्योंकि बहुत मोस्ट ऑफ द टाइम कोच इज देयर। नेक्स्ट स्लाइड। अब एग्जाम्पल की तरह हम लोग देख रहे हैं कि प्रॉब्लम क्या है, तो पैर में दर्द, फुट का पेन है। तो क्या करेंगे हम लोग? फुट पेन है तो फिट फीट का स्क्रीनिंग कराएंगे, डॉक्टर्स को रेफर करेंगे। मान लीजिए उसमें कुछ कॉर्न आ गया तो डॉक्टर के पास भेजेंगे। कुछ उसको इंसोल की आवश्यकता है तो ऑर्थोटिस्ट प्रोस्थेटिस्ट के पास जाएंगे। रिजल्ट क्या है? बेटर वॉकिंग हो गया, मतलब इंप्रूव करा दिए हम। तो एग्जाम्पल की तरह हर एक फील्ड में है कि समस्या क्या है तो हम उसका निदान कैसे करेंगे। कोई बहुत ओबीज है, मोटा है, तो उसको हम लोग फन फिटनेस का, उसको फन की तरह उसको एक्सरसाइज के लिए प्रेरित करेंगे। चलिए नेक्स्ट स्लाइड। अब हम लोग बात करते हैं बेनिफिट्स क्या है। तो बेनिफिट, हमारा जो खिलाड़ी है वो हेल्दी हो जाता है, हिंदी में समझे तो स्वस्थ हो जाता है खिलाड़ी, उसके परफॉर्मेंस अच्छे हो जाते हैं।
और उसकी फैमिली खुश होती है। तो ये सब बेनिफिट है, ये सब लाभ है अगर हम लोग इस हेल्दी एथलीट प्रोग्राम को कंडक्ट कराते हैं, स्पोर्ट्स कराते हैं। तो इसमें फैमिली को फायदा, बच्चे को फायदा और खिलाड़ी को तो फायदा हुआ ही, स्वस्थ होते हैं। चलिए दूसरा बेनिफिट के बाद हम लोग नेक्स्ट स्लाइड। तो की मैसेज हम लोग को क्या मिल रहा है? हम लोग इस पूरे टॉक में मैसेज क्या मिला कि आप समझ गए कि हेल्दी एथलीट किसको कहे। जो हेल्थ पार्ट है एक स्पोर्ट्समैन का, देखिए स्पेशल ओलंपिक्स एक स्पोर्ट्स ऑर्गेनाइजेशन है और उसी के साथ साथ उसका एक हेल्थी एथलीट प्रोग्राम है जिसमें कि उसके हेल्थ के बारे में हम लोग सोचते हैं। तो हर जगह जहां जहां ये प्रोग्राम होता है, स्पोर्ट्स होता है, वहां ये कोई एक न एक स्क्रीनिंग टेस्ट रहता ही है, चाहे वो फिट हो, चाहे फन फिटनेस हो, स्पेशल स्माइल्स हो, हेल्दी हियरिंग हो। इसमें एक हेल्दी हियरिंग छूटा हुआ है। हेल्दी हियरिंग क्या है? वो भी एक डिसिप्लिन है। कान से, अगर कान से कम सुन रहे हैं, हम उसको पता चले तो उसको हियरिंग एड उपलब्ध कराए तो उसका अच्छा परफॉर्मेंस हो गया। तो जिस तरह से फन फिटनेस था, फिट था, हेल्थ प्रमोशन था, स्पेशल स्माइल्स था, उसी तरह हेल्दी हियरिंग है और मेंटल वेलनेस था। तो हम लोग की मैसेज है कि हम लोग को स्क्रीन करना है अर्ली, जिससे कि कोई भी समस्या का समाधान जल्द हो, समय से हो, समय से पहले हो। तो इससे होगा क्या कि हम लोग हेल्दी स्टे करेंगे। स्टे हेल्दी मतलब हम लोग स्वस्थ रहेंगे। स्टे हेल्दी मतलब हम लोग बीमार रूप से नहीं रहेंगे। हम लोग सारा एक्टिविटी करके वी विल ट्राई टू स्टे हेल्दी। देन प्ले सेफली। किसी भी खेल को खेलेंगे तो विद डिसिप्लिन, रूल्स एंड रेगुलेशंस, तो हम लोग सेफ रहेंगे। अब उसमें स्पोर्ट्स में आप बेइंतहा खेलेंगे, गिर गए, आपका फ्रैक्चर हो गया, टूट गया, लिगामेंट टूट गया, तो आप इंजॉय करने के लिए खेलिए, सेफली खेलिए, सुरक्षित खेलें। अब इसी पर एक बात बता दें, जैसे डाउन सिंड्रोम होता है, जो कि जिसका चेहरा थोड़ा अलग टाइप का हो जाता है बच्चे का, हालांकि बहुत लवली होता है। देख उसको देखेंगे तो प्रिटेंड टू बी वेरी जॉली। डाउन सिंड्रोम के बच्चे, तो उनका गर्दन में जो एक सबसे ऊपर वाली हड्डी है, जो रीढ़ की हड्डी है, एटलांटो एक्सियल जॉइंट, वो थोड़ा सबलक्सेटेड रहता है, मतलब लैक्स रहता है। अगर इसको वॉलीबॉल खेलने के लिए हम कहेंगे तो वहीं पर उसको प्रॉब्लम हो जाएगा। तो उसके लिए अलग एक गेम निकाला है, बूची गेम, जो बॉल को फेंक करके खेला जाता है। उसमें ज्यादा उसमें उसको मूवमेंट नहीं है, तो देयर बाय ही इज सेफ। तो सेफली खेलना है और सबको इंक्लूड करना है, सभी को शामिल करें। जैसे पहले ऐसा होता था कि ऐसे बच्चे का ही एक ग्रुप बना के अब खेलते थे, लेकिन अब चेंज हो गया। अब यूनिफाइड पार्टनर्स का रोल आ गया, मतलब नॉर्मल बच्चे भी उसमें रहेंगे, ऐसे बच्चे भी उसमें रहेंगे। तो फिर वो एक दूसरे को समझेगा। मेन स्ट्रीम में, सोसाइटी के मेन स्ट्रीम में उसको रखना है, उसको आइसोलेट करके अलग नहीं करना है, उसको सबसे मिलना है। बच्चों को, उसके फ्रेंड्स को बताना है कि ये किसी को भी हो सकता था, इंटेलेक्चुअली चैलेंज आपको हो सकता था, किसी को हो सकता है। इसलिए कोई हमसे ये अलग बच्चे नहीं है, उनको कोई तिरस्कार के भावना से नहीं देखना है। उनका तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो इज नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर इट। तो इसलिए लोग सबको इंक्लूड करना है इस खेल में, टू इंक्लूड एवरीवन। इसमें यूनिफाइड पार्टनर्स है,
तो कंपटीशन भी हेल्दी होता है और अच्छा लगता है। नेक्स्ट स्लाइड तो अब खत्म है, देखिए कुछ है क्या? मैं धन्यवाद देता हूं, आप सब लोग इस कार्यक्रम को बेहतर बनाए, मिलकर बनाए। अब किसी को कोई प्रश्न है तो वो हमसे इंटरेक्ट करे, पूछे। Any question from any एनीवन? suggestion? Any suggestion? हाँ, ये तो आप फील्ड में आएंगे तो वहां पर प्रश्न भी उठेगा और उसका समाधान भी पता चलेगा। और हमारे बीच डॉक्टर शिवाजी हैं। अब मैं तो समझता हूं कि इन्हीं के मुहिम से बिहार में आज स्पेशल ओलंपिक्स इतनी बड़ी ऊंचाइयों को छू पाया, क्योंकि ये इसके एक्सपर्ट इसकी पढ़ाई पढ़ करके हैदराबाद से ही बिहार आए। इनको बहुत अच्छा अच्छा नौकरी मिल सकता था, उसी में रह जाते। यूजुअली जो लोग ऐसा ही करते हैं, लेकिन इन्होंने एक मिशन के तरह, स्पेशल ओलंपिक्स एक मिशन है, उसी तरह इन्होंने इसके एक मिशन के तरह इसको अपने बिहार में लागू किया। और फक्र है मुझे इस बात को बताने में, बाबर अराफात नाम का एक लड़का था जो वॉज द फर्स्ट बॉय जिसको ब्रॉन्ज मेडल मिला डबलिन में जाकर के। 2000 के करीब की बात है ये, 2001 2000 की बात है। और उसको भेजने वाले और कोई नहीं, डॉक्टर शिवाजी थे, जिन्होंने नेट से जानकारी प्राप्त किया और उस बच्चे को यहां से तैयार करके भेजे और वहां ब्रॉन्ज मेडल ले आया। अचंभित हो गए पूरे विश्व के वहां स्पेशल ओलंपिक्स के वो सारे ऑफिस बेयरर्स कि ये कौन सा जगह पटना है। पटना को तो वर्ल्ड के मैप पर लोग नहीं समझ रहा था। इंडिया, इंडिया का एक स्टेट बिहार और बिहार का एक सिटी पटना, जहां से एक बच्चा आता है तो दैट प्लेस मस्ट बी वेरी वाइब्रेंट। उन लोगों को कुछ मालूम नहीं था। फिर उनकी जिज्ञासा हुई कि हम लोग क्यों नहीं इस बिहार के पटना शहर को देखें। और उन्होंने एक पायलट प्रोजेक्ट बनाया। दिल्ली में मिस्टर नील थे जो एरिया डायरेक्टर थे वहां के, उनसे संपर्क किया लोग। उन्होंने हमारे शिवाजी से संपर्क किया और शिवाजी हमसे संपर्क किए, क्योंकि इनको मुझसे मुलाकात थी। और हम लोग उस समय वहां से डायरेक्ट यूएस से बात करते हुए एक प्रोग्राम को चॉकआउट किए। और मेडफेस्ट एक कार्यक्रम है, इसमें एक डिसिप्लिन वो भी है जिसमें कि मेडिकल फेस्टिवल के तरह इसमें सारा चीज का स्क्रीनिंग होता है। कोई भी इश्यूज आ गया तो उसको हम लोग स्क्रीन करते हैं। तो उसका एक पायलट प्रोजेक्ट पटना में किया गया और इतना सक्सेसफुल हुआ। हाँ, इतना सक्सेसफुल हुआ वो पायलट प्रोजेक्ट। द्वारा प्रायोजित एक कार्यक्रम है और इसमें बड़ी संख्या में स्वयंसेवक और ऑडियोलॉजिस्ट शामिल है, जो हमारे खिलाड़ियों की सुनने की क्षमता का परीक्षण करते हैं। खिलाड़ी इसके लिए एकदम सही स्थिति में थे। उन्हें अपने कोच से सुनने की जरूरत थी। उन्हें लोगों द्वारा दिए ये जा कान देखा रहे जा निर्देशों रहा की है, जरूरत थी। उन्हें कान स्टैंड में में बैठे ऑडियोमेट्री लगा दर्शकों की के देखना कहानियां और उनकी उपलब्धियों पर उत्साह से भरे भाषण सुनने की जरूरत थी। देखिए इसी तरह से स्क्रीनिंग होता है। ये कर सकते हैं, ये कर सकते हैं। अभी मुझे मिला है एक अपॉर्चुनिटी एक अपने वीडियो आसपास बना की बात करके आप वहां भेजने करते का। हैं। आपके साथी खिलाड़ी आपको क्या बता रहे हैं, आपके कोच आपको क्या बता रहे हैं? जब हम स्पेशल ओलंपिक क्लियरिंग सर्विस के पास गए तो उन्होंने कहा कि उसकी मदद के लिए कुछ किया जा सकता है और अब वो अपने खराब कान से भी उतना ही अच्छा सुन सकता है जितना कि अपने अच्छे कान से। मैं हेल्थ हियरिंग को धन्यवाद देता हूँ कि उसने मेरी सुनने की क्षमता वापस दे दी।
तो फिट में कैसे बैलेंसिंग करना है, कैसे एक्सरसाइज करना है, उसका एक वीडियो बनाने के लिए मुझे बताया गया है। समय के तनाव के कारण, मतलब मेरे को टाइम थोड़ा कंस्ट्रेंट है, मैं उसको जल्दी ही बना करके स्पेशल ओलंपिक्स भारत को भेजूंगा। तो आप लोग, मैं समझता हूं कि एक सरल भाषा में हेल्दी एथलीट को जरूर समझ गए होंगे, स्पेशल ओलंपिक्स को भी समझ गए होंगे। ये ऑर्गेनाइजेशन पूरे 180 कंट्री से अधिक देशों में चल रहा है। हमारे यहाँ बिहार से कई बच्चे जाते हैं, नहीं बहुत अच्छा सुन सारे सकता है मेडल, जितना कि अपने बहुत सारा मेडल्स लेके आते हैं। बिहार सरकार भी उनको सम्मानित करती है। तो आप इसके साथ जुड़ जाएं तो फिर आप इसको छोड़ नहीं सकते। जो भी व्यक्ति इसके साथ अटैच हो गए, वो इसमें हमेशा के लिए अटैच हो जाते हैं। Amber Gertsch. I'm from Utah. I've been doing Special Olympics for a little over 19 years now. Love it. Before I was born, my doctors told my parents I would not live. And if I did live, I wouldn't have a high quality of life. But with my strong personality, I proved them wrong. My name is Heidi San. I'm 31 years old from San Diego. One of my daughter was very impatient with me, my mom, and I did not like that. I told them, "You don't understand. I have special needs." Nobody knew I was handicapped. They treated me like I was just like everybody else, but at the same time, I had to explain to them that I do have handicaps. So can you be patient with me? We need to learn to adapt to other people rather than the norm, because we're not all exactly the same. Everyone needs a health care and good health, a good lifestyle, no matter who they are. My heart doctor, when he come in to see me, he have a smile on his face, and he's very patient with me, and he listened to me, he listened to my heart, and he cares about me too. All my life, I've been able to accomplish things because people have given me that opportunity to forward myself. It's amazing what just a little tweak of things can do to help someone. Dr. Sahab? Yes. Yes. So there were some video clips. Yeah. So healthy athletes needed for all the athlete also. Now it's especially I designed hope for. all the viewers must have enjoyed this talk. Maybe some of them must be knowing something, but some must be aware of the new things. And they will join our mission of Special Olympics in the future also. And we will see that no children in Bihar is left behind. Everyone should get the opportunity to come forward. And this is our mission, to take everyone with us. Thank you, Dr. Sahab. And अब किसी को क्वेश्चन है? Any question, any suggestion, anything? You may ask question. मुकेश कुमार जी, सुधा जी, रमी झा जी, yeah, you have any question? Sir, hello, sir. Yeah. Hello. Yes. Yes. Sir, namaste, sir. Namaste. Hello.
सर मेरा नाम रम्मी झा है, मैं बिहार पटना से हूँ और एक पेरेंट्स हूँ। और आप लोग के कारण मुझे इसमें सम्मिलित होने का मौका मिला, इसके लिए मैं बहुत तहे दिल से आप लोग का धन्यवाद करना चाहूंगी सर। और मैं एक स्पेशल चाइल्ड की पेरेंट्स भी हूँ। तो आपने बोला है कि एक एथलीट के लिए सबसे बड़ा फिटनेस होता है, लेकिन वो और सारे एथलीट तो अपना अपना बोल देते हैं सर, लेकिन ऑटिस्टिक चाइल्ड जो होते हैं ना, वो तो अपना नीड नहीं बता पाएंगे कि उनकी आँख की प्रॉब्लम है कि कान की प्रॉब्लम है। नहीं तो वो तो वो कैसे, तो मतलब हाँ, तो जब स्क्रीनिंग में आएंगे ना तो हमारे डॉक्टर्स को यही ट्रेनिंग तो दी गई है कि दे हैव टू ब्रिंग फ्रॉम देम कि उनको क्या प्रॉब्लम है। दे विल हैव द स्क्रीनिंग विल बी डन विथ लॉट ऑफ पेशेंट्स, दे विल मेक फ्रेंडली विद देम, एंड देन ग्रेजुअली दे विल फाइंड आउट, लाइक उनको बात में मिला के उनके आंख का परीक्षण कर लें, उनको बात में मिला करके दांत का, ये उसमें बहुत सारा मॉडल सब रहता है वहां पर जहां इनका जांच होता है, जिससे कि वो उस चीज के में खो जाएं और अपने को समर्पित करें। तो अगर हम चाहेंगे कि हम हड़बड़ हड़बड़ करके उसको जल्दी जल्दी करके उसको हम कुछ जांच कर लें 2 मिनट में 1 मिनट में, तो नहीं होने का है। जी और इसमें वैसे चिकित्सक ही रहते हैं ज्यादा, जो पेशेंट्स से इसमें जानकारी प्राप्त कर लेंगे, उनके पास एक्सपीरियंस है। और जी उनको तो भाई ऐसा ऑटिस्टिक चाइल्ड ऐसा नहीं है ना कि एवरी 24/7 डे उनका एक काम पीरियड भी तो आता है। जी और उनको वो ऐसा है, जब उनको जिस चीज में मन लगता है, दे आर नॉट गुड इन समथिंग बट दे आर वेरी गुड इन समथिंग। जी तो उनके जो उस हैबिट को उनसे कराते हुए इस चीज में वो, जैसे मान लीजिए आप ही के बच्चे हैं, तो उसको जी किस चीज में ज्यादा मन लगता है? जी गाना सुनना या टीवी देखना। टीवी देखना। तो जी उसको उस समय जी जांच के समय में उसको थोड़ा मोबाइल वगैरह दे दीजिए, हालांकि कहते हैं कि ये अच्छा नहीं है, लेकिन जब हम अगर टेस्ट कर रहे हैं तो उस समय कोई मोबाइल दे दिया तो जी मोबाइल देखता होगा, और उसी बीच में हम लोग उसका जांच कर लेंगे, जी मोबाइल में ही टेस्ट कर लेंगे कि हाँ पढ़ो तो बच्चे क्या लिखा है इसमें, कौन सा गेम तुम देखना चाहते हो, स्पाइडरमैन है ये कि ये सुपरमैन है, तो ही कैन आइडेंटिफाई। उसी में छोटे वर्ड वर्ड बहुत सारे ऐसे ऐसे हैं जिनसे कि चाइल्ड डेवलपमेंट सेंटर भी होता है, जहां पर आप जाएंगे तो वो चाइल्ड डेवलपमेंट सेंटर से वो लोग के पास बहुत गैजेट्स होते हैं, और उस गैजेट से दे मेक आउट कि इनका झुकाव किधर है। सर इससे जी रिलेटेड एक वीडियो है, आपको दिखाते हैं, आप ही का बना है। नमस्कार, स्वागत है इस नए एक्सप्लेनर में। बिना इधर उधर की बातें किए सीधे पॉइंट पर आते हैं। आज हम बात कर रहे हैं 6 अगस्त 2026 के उस बहुत ही शानदार डे 23 स्पेशल सेशन की। ये सेशन ट्रेन द ट्रेनर प्रोग्राम का हिस्सा था, जो कम्युनिटी इंक्लूसिव स्पोर्ट्स कोचेस के लिए स्पेशल ओलंपिक्स भारत बिहार ने आयोजित किया था। और इसमें डॉक्टर सुभाष चंद्र ने जो इनसाइट्स दिए हैं ना, वो वाकई कमाल के हैं। शुरुआत ही इस कमाल के मोटो से करते हैं, एवरी एथलीट मैटर्स, यानी हर खिलाड़ी है खास। सिर्फ सुनने में ही अच्छा नहीं लगता, बल्कि ये पूरी फिलॉसफी की जान है। समाज के हर हिस्से को खेल के मैदान तक लाने की ये एक बहुत ही सॉलिड पहल है। तो आज के इस एक्सप्लेनर का रोड मैप कुछ ऐसा रहेगा। सबसे पहले स्पेशल ओलंपिक्स का मिशन, फिर हेल्दी एथलीट्स प्रोग्राम का ओवरव्यू, उसके बाद हेल्थ के 6 पिलर्स, एक कोच का रोल, और आखिर में इसके रियल लाइफ इम्पैक्ट्स। चलिए आगे बढ़ते हैं। सेक्शन 1, स्पेशल ओलंपिक्स का मिशन और समावेशी समुदायों का निर्माण। आइए सीधे उस स्पेशल सेशन में चलते हैं। डॉक्टर सुभाष चंद्र, जो कि स्पेशल ओलंपिक्स भारत के रीजनल क्लिनिकल एडवाइजर हैं, खासतौर पर फिट के लिए, उन्होंने इस सेशन में एक बात बिल्कुल साफ कर दी
इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटीज वाले लोगों को खेलों के जरिए कैसे आगे बढ़ाना है, यही हमारा असली फोकस होना चाहिए। सेक्शन 2 हेल्दी एथलीट्स प्रोग्राम का ओवरव्यू और एथलीट्स के लिए सिस्टमिक सॉल्यूशंस। अब सवाल आता है, ये हेल्दी एथलीट्स प्रोग्राम आखिर काम कैसे करता है? इसके 3 मेन पार्ट्स हैं। पहला फ्री हेल्थ स्क्रीनिंग, दूसरा हेल्थ एजुकेशन और तीसरा मेडिकल रेफरल। लॉजिक बहुत सिंपल है। अगर किसी हेल्थ इशू को हम शुरुआत में ही पकड़ लें तो एथलीट का परफॉर्मेंस अपने आप बेहतर हो जाता है ना कमाल की बात। आगे बढ़ते हैं सेक्शन 3 पर, 6 पिलर्स ऑफ हेल्थ यानी मेडिकल स्क्रीनिंग के खास एरियाज। अब इस प्रोग्राम का जो सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट है ना, वो ये कि इन्होंने चेकअप्स को बहुत आसान बना दिया है। पहला पिलर है फन फिटनेस। नाम से ही लग रहा है ना, मजेदार। इसमें ताकत, बैलेंस और फ्लेक्सिबिलिटी चेक होती है। बस एक 10 पैर मिनट पर में खड़े लगाएंगे। होना है और बेसिक फिटनेस का असेसमेंट हो गया। बिल्कुल सिंपल। दूसरा पिलर है फिट फिट, और ये डॉक्टर चंद्रा की अपनी एक्सपर्टीज है। पैरों की कंडीशन और चलने का तरीका, इस पर बहुत फोकस रहता है। जरा सोचिए, एक एथलीट के लिए सही साइज के जूते पहनना कितना क्रूशियल है। गलत जूते ना सिर्फ गेम खराब करते हैं बल्कि इंजरी भी दे सकते हैं। तीसरा पिलर है स्पेशल स्माइल्स, जो डेंटल केयर से जुड़ा है। हम सब जानते हैं कि दिन में 2 बार ब्रश करना बेसिक हाइजीन है, लेकिन ओवरऑल हेल्थ के लिए ये कितना जरूरी है, ये यहाँ समझ आता है। और भाई, एक अच्छी सी स्माइल कॉन्फिडेंस तो बढ़ाती ही है। आगे आता है ओपनिंग आईज यानी विजन स्क्रीनिंग। अब मैदान पर फोकस चाहिए तो नजर एकदम तेज होनी चाहिए। चार्ट पढ़वाने जैसे बहुत ही बेसिक टेस्ट से पता चल जाता है कि चश्मे की जरूरत है या नहीं। यकीन मानिए, ये छोटा सा विजन करेक्शन गेम में बहुत बड़ा बदलाव ला सकता है। पांचवा पिलर फिजिकल हेल्थ से थोड़ा आगे जाता है, स्ट्रॉन्ग माइंड्स। एक चैंपियन एथलीट के लिए मेंटल स्ट्रेंथ और पॉजिटिविटी उतनी ही जरूरी है जितनी फिजिकल फिटनेस। डीप ब्रीदिंग जैसी स्ट्रेस मैनेजमेंट टेक्निक्स उन्हें प्रेशर हैंडल करने के लिए मेंटली तैयार करती हैं। और ये 6 पिलर्स पूरे होते हैं हेल्थ प्रमोशन के साथ। इसका सीधा कनेक्शन हमारी लाइफस्टाइल से है। अच्छा खाना, साफ पानी और हाथ धोने जैसी बेसिक हाइजीन की आदतें, ये सब मिलकर ही एक एथलीट को सक्सेसफुल बनाती हैं। सेक्शन 4 द कोच वाइटल रोल, थ्योरी से लेकर प्रैक्टिकल एप्लीकेशन तक। तो अब सोचने वाली बात यह है कि इस सब में एक कम्युनिटी कोच का रोल क्या है। ये सिर्फ खेल सिखाने तक सीमित नहीं है। कोच को बहुत ध्यान से एथलीट्स को ऑब्जर्व करना होता है, उन्हें हेल्थ स्क्रीनिंग के लिए मोटिवेट करना होता है और सबसे इंपॉर्टेंट, एथलीट्स की फैमिली को सपोर्ट करना होता है। प्रेजेंटेशन का ये हिस्सा सच में आई ओपनर है। एक कोच का सही टाइम पर लिया गया एक्शन सब कुछ कैसे बदल सकता है, ये देखिए। स्टेप 1, कोच ने नोटिस किया कि पैर में दर्द है। स्टेप 2, उसने तुरंत फिट फीट स्क्रीनिंग करवाई या डॉक्टर को रेफर किया। रिजल्ट, स्टेप 3 में खिलाड़ी का चलना बेहतर हो गया और वो आराम से खेल पा रहा है। एकदम परफेक्ट प्रैक्टिकल अप्रोच। सेक्शन 5 रियल इम्पैक्ट एंड बेनिफिट्स और कैसे ये पूरा इकोसिस्टम बड़ा हो रहा है। अब जब हमारे एथलीट्स पूरी तरह से हेल्दी और रेडी होते हैं ना, तो वो बड़े इवेंट्स में रॉक कर देते हैं। 2026 के कैलेंडर को ही देख लीजिए। 28 अगस्त को पटना में होने वाली बॉचे चैंपियनशिप और फिर सितंबर में भागलपुर की नेशनल चेस चैंपियनशिप फॉर दिव्यांगजन। ये इवेंट साबित करते हैं कि ये स्क्रीनिंग प्रोग्राम्स एथलीट्स को कितने बड़े मंच के लिए तैयार कर रहे हैं। और इस पूरी मेहनत का जो रिजल्ट निकल कर आता है, वो वाकई दिल खुश कर देने वाला है। हेल्दी एथलीट्स का सीधा सा मतलब है बेटर परफॉर्मेंस, और जब परफॉर्मेंस अच्छा होता है तो फैमिलीज भी खुश होती हैं। ये एक ऐसा पॉजिटिव साइकिल है जो पूरी कम्युनिटी को एक साथ आगे ले जाता है। तो इस पूरे एक्सप्लेनर का सार क्या है? डॉक्टर चंद्रे के सेशन से ये 4 सॉलिड टेकअवेज मिलते हैं। जल्दी स्क्रीनिंग करवाएं, हेल्दी रहें, सेफ तरीके से खेलें और सबसे बड़ी बात, हर किसी को शामिल करें। इंक्लूजन ही असली जीत है। और चलते चलते एक सवाल छोड़कर जा रहे हैं सोचने के लिए। आज हेल्थ स्क्रीनिंग को प्रायोरिटी देकर हम कल एक ज्यादा इंक्लूसिव और एम्पावर्ड कम्युनिटी कैसे बना सकते हैं, इस पर जरूर सोचिएगा। आज के इस एक्सप्लेनर में जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो आई होप यू माइट हैव अंडरस्टूड हमारे डॉक्टर सुभाष चंद्रा जी क्या बोलना चाह रहे थे इन द ब्यूटीफुल वीडियो क्लिप्स। एंड इफ एनी मोर क्वेश्चन फ्रॉम एनी साइड? No, sir. Thank you. Yes.
MS Mehti ji. Tomorrow we will have a para yoga on the, and she had made the presentation. Mehti ji, you want to say something? MS Mehti. Sudha ji. Deepika Guleria ji, you ask any question? क्वेश्चन मेरा एक क्वेश्चन था Yes. सर। गुड इवनिंग सर। मैं रोशन प्रकाश दरभंगा बिहार से। सर हमारा क्वेश्चन था जो मेंटल वेलनेस में स्ट्रेस मैनेजमेंट के लिए एक खिलाड़ी के लिए एक छोटा एक दो कोई पॉइंट सर। और पर्सन विद डिसेबिलिटी के लिए बहुत सारे, अभी उसके लिए हमारा कल हमारा एक सेशन भी होना है, मैती जी लेंगे पैरा योगा। सो हमारा योगा इज वेरी यूजफुल फॉर द स्ट्रेस मैनेजमेंट फॉर आवर athletes, especially for the Special Olympic athletes as well as our other athletes also. So हमारा stress management, there is a part of psychology or say sports psychology, it is needed to be handled for all the athletes as well as the parents as well as the coach also. So उसको stress management, and this I told you when I was in the Tokyo 2020. What happened? Our one athlete Sharad Kumar from the Muzaffarpur, he got injured during the practice, and one day before, and next day the event is going to be held. When he came and the doctor told he's not able to participate, so we bola no sir ro raha, started to beeping. Last 4 years I have keep trying, and what happened sir? Then मैं उनको बोला गीता, गीता का पूरे गीता को पढ़ाया रात भर, गीता के जितने भी मेजर मेजर उपदेश थे उनको साइकोलॉजिकली भी उनको स्ट्रेस किया कि कोई बात नहीं, यू फॉरगेट कि तुम्हारे पास कोई दर्द है, खेलो। एंड व्हाट हैपेन, फाइनली ही अपने आप को जो है ही गॉट रेडी टू पार्टिसिपेट इन हाई जंप। एंड यू माइट नोइंग दैट द इन द हाई जंप Sharad Kumar from Muzaffarpur in the Para Olympic, he got the bronze medal. So किस तरह मैनेजमेंट होता है, there is a we have this type of tips, and we know how to handle and how to manage the stress and anxiety and other psychological phenomenon that is also on the part of that comes under sports psychology. जी डॉक्टर प्रकाश जी, थैंक यू सर, थैंक यू। हाँ, so we'll have one day the sports psychology also. Anyone, any question? Hello, sir. Deepika Guleria this side. Yeah. सर एक्चुअली जस्ट लाइक जैसे सर ने हमें सब एक्सप्लेन किया, बहुत ही अच्छा सेशन था, सब कुछ अच्छे से समझ में आया, लेकिन एक चीज मुझे समझ नहीं आई कि जैसे सर ने बताया कि हम स्क्रीनिंग करते हैं, लेकिन ये स्क्रीनिंग होता कब है? सेशन ये कुछ भी इवेंट होने से पहले होता है या फिर हम कभी भी करवा सकते हैं? कैसे कंडक्ट कैसे होता है ये स्क्रीनिंग वाला इवेंट? Dr. Chandra, open your unmute yourself. Open your mic. Unmute yourself, sir. Press the sound button. No, Rahul ji, see why he is not able to unmute himself. Tap to speak. Yeah. Done speaking. Yes. Am Yeah. I clear? Yeah, audible, Yeah. sir. Actually, every place in the stadium, the sports event is being taken place, and nearby to that place where there is some closed space and all, what we do, we decorate it very nicely and as per the guidelines of every event, and there the athletes are brought before the event, after the event, in between the event, and we try to
athlete, we try to, video is stopped. We try No, to, your sound mic is is coming. open, na? Yeah, Mic yeah. is, Yes. we try to screen almost all the athletes. We have a list ki, say 300, 500 are taking participation in there. Sometimes when there is constraint of, because one after the other the events are taking place, we go to the field also, so that they are not missed. The coaches in their lunch period, they bring to the place where the screening is going on, and then we try to complete all the screenings of the athletes. It is nearby area. Before this, and I told you ki it is before the sports, in between the sports, and after the sports also. Okay, just like event has been started, the athlete has to participate in that event. So, I mean, it is mandatory for a screening or it is voluntarily? No, It's the a coach volunteer. brings it. The coach brings the team, like a group of some institution, 10, 15 athletes are there. Some institution, their coach, they come with 10, 15. So one by one, we call them. Whosoever is free, we just call them and we start doing the screening. The whole team is a different team, and then it is all coordinated. There is a good coordination between the sports which is taking place and the screening which has to be taken place, because every athlete's data, we try to take it, maintain it, and we put in the database. I would like to one thing more thing. This is Yeah. year round the healthy athletes program are going on somewhere. Like sometimes the healthy hearing, sometimes the fun fit, and a special smile likewise. Mhm. So program is going on. She wanted to know when it is. So it's a voluntarily. It's not. It's a not needed. It's a very urgent, and you have to after finish, because we want to improve their performance of the athletes. We want to see the healthy. See the if you are not healthy, if suppose your teeth paining, or something is not able to you, because being a parent, being a siblings, being a coach, you are not knowing what is going on. But the special our doctors and the healthy athlete teams are trained how to assess, how Find to, out yeah, find out there if any defect. problem, yeah, so if any problem is there, if like Mm. slow vision is there, so we detect and we'll correct it also. So in the future, if he or she wants to participate in the sports, that will be easier and safer side, and without any, otherwise they may have the injury in further. Dr. Subhash Chandra, that's I wanted to add Yes, on that. yes, yes. Any more question from any side? Okay, sir. Then Sir, 1 minute, 1 minute. Just yeah, one question, last question. yeah, yeah. जैसे अभी इवेंट अभी हम जैसे बात हमने की कि हम ये इवेंट में ये परफॉर्म कर सकते हैं कि कोई इंजरी हुई तो हम टीम से कोऑर्डिनेट कर सकते हैं, लेकिन फॉर एग्जांपल जैसे अभी इवेंट होने वाला है वो अभी 2 से 4 महीने बाद में है, और मैं चाहती हूँ कि मैं एज अ पेरेंट, मुझे पता है कि कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आ रही है, तो क्या मैं स्क्रीनिंग के लिए आ सकती हूँ? मतलब कहाँ पे होता है ये स्क्रीनिंग? ये सिर्फ इवेंट्स में ही होता है या कहीं और पे भी होता है? I got the point. Thing is that Mhm. the Special Olympics, like we are the Special Olympic Bihar chapter, and every state they are the state chapters, and we keep organizing year around the various healthy athlete programs. So you will tell me, I will tell you which means the section like discipline is going to be held when. Recently, we have conducted a special smile program at 1 month back at Patna. So likewise, the events are going on. You are not knowing, so we'll
because we have added one group, so these programs are always going on somewhere in every state. So we'll otherwise you go through the website of Special Olympics Bharat, and you will find out these schedules are means showing at the websites, scrolling on the website. So likewise, it is there. And what Dr. Subhash Chandra wanted to share, that the healthy athlete means athletes must have the healthy, then he can Well, perform. Yeah, then can he perform. So every coach must know their health section also should be screened and examined. Am I right, for the Dr. betterment. Subhash? It is for the betterment of the sportsman. Yes, sir. Thank you, sir. I got my answer. Thank you so much. Chandrasekhar ji from Tamil Nadu, yeah. Any question, inquiry? Sir, very good Yeah. evening. Yeah. Yes, sir. Sir, today is a topic very fine, sir. We hope